Hello everyone, I'm Dr. Deepika Chhabra with my teammate Mr. Amit Saxena. On behalf of Jagsonpal Pharmaceuticals Limited, we bring warm greetings to all. To make the journey of pregnancy comfortable, Jagsonpal brings to you Cramp-Off tablets for relief from pregnancy-induced leg cramps, sugar-free Lycorate sachet in orange flavor to prevent pregnancy complications, and NariCal tablets of calcium citrate malate, vitamin D3 and folic acid. In association with Indian Academy of Cosmetic Dermatology and Gynecology, IACDG, Dr. Ragini Agarwal presents Nurturing Birth, Journey to Motherhood from Conception to Delivery and Beyond. The first episode of this series is to understand what next when urine pregnancy test comes positive. So we have a talk on the topic by Dr. Ragini Agarwal. She is founder president of IACDG and national vice president FOGSI. This will be followed by a question and answer session by Dr. Chandan Kachru. Dr. Chandan Kachru is a consultant OBS and Gynae and Adolescent Health at Gurgaon, and she is the chairperson Udan project of Haryana Association of OBS and Gynae, HAROB-GYN. A very warm welcome to the faculty and to all the attendees present. Please post your queries by text in the Q&A box to be answered at the end. Please note, this webinar is streaming live on Facebook and the recording will remain on our YouTube channel for reference and promotion. So now I request Dr. Ragini Agarwal, ma'am, please initiate the new series on nurturing birth. Welcome, ma'am. Thank you, Deepika, for your kind words and the all support which Jagsonpal gives us whenever we want any type of help. And this series has a special plan to continue with the all problems what a woman face and how for the doctors, how we counsel the patient, because in today's world, to give the education to the patient is very, very important. And to all the viewers, women and our pregnant women specifically, I think they are going to benefit by this a lot, because we are coming with a series of education during pregnancy, what you want when you visit a doctor's OPD, and with the medical jargon, you just become put off, oh God, what they are talking. And many a time, lots of tests, they give a confusion in your mind why they are asking. Is there some commercial benefit behind it? My dear friends, there are not always a commercial benefit. We allopathic doctors are doing a evidence-based medicine. It is a science which is continuously going under research. Many things we just doing today, maybe it is obsolete after 10 years, but there are something are basics. Basics is continuing always. And it is our duty to tell you in details why we are writing these things, why we are asking. But this is not possible in our OPDs, busy OPDs, to give a 1 hour, 45 minutes to a patient. Neither it is logical, nor it is any way it is possible. And we cannot spend 1 hour with one woman. Now you can easily understand how many women then we are going to see. So this type of the programs is very, very beneficial. Whoever the doctors are joined here, if they don't mind, they can, our next series, they can send to their own patients, own non-medical contacts to join this thing, because we together, all doctors can do wonder and can bridge the gap between us and the public. And only then we can open their eyes that we are for them and for their welfare. And this is not the only few amount of the money or test. They are really going to change their life. So with this thing, I'm going to start the first ever debut talk of this series, UPT positive, what is next? Give me the time to share my screen. Thank you again for taking your precious time and join this particular series, which is very, very close to my heart. For me, the pregnancy is just a starting. And at the 9 month, it's not an end of a journey. It is a start of a journey of motherhood,
which goes on and goes on till you die. Whether you are 80 years old, you have a 60-year, 45-year-old, your child, he is a child or she is a child to you always. So mother is a mother always. And not only in next series, what I am going to stress, which is not written in any book, not discussed too much in our medical curriculum, how we should ready ourselves to bring the child in the life. All type of tensions which we carry in our mind, how it is going to affect the whole life of the child is very, very important. Today, I'm going to be very, very clinical, very, very basic, but the future programs, when they are going to unfold, it will going to bring some new things also. And where the doctor friends are joined here, in my personal phone number, I really, and my personal email ID, which I will put, you are all welcome to send me all the suggestions which I can bring out. Even if you share something with your name, I will share in my talks that this input is come with this doctor. And so all of us benefit by that. So with this, I will start the Nurturing Birth series. UPT positive, what is next? The first thing, UPT positive, what is next? Is it today I'm taking a happy side because I'm talking about journey to motherhood. But sometimes this UPT positive, what is next is not always that woman who is coming with a UPT positive is going to carry that pregnancy that will come in the future. But today we are only focusing for a happy thing. When this UPT positive brings a smile on the face of the couple. It's very aptly said that pregnancy is the only time in life when you will fall in love with someone you haven't met. Enjoy this time, oh mom to be. There are so many things which are left to see. And this is the best periods of your life. Congrats. Yes, if you really want to be a mother, nothing will be the more, oh my God, I am pregnant. This feeling, every mother, when she feels it from the heart, I think at that time, if the face was captured, that is the most beautiful smile till that bundle of joy comes in your lap. So, is UPT positive is enough? Yes, UPT negative can be the wrong. But UPT positive means pregnancy somewhere, whether it is going to be a productive pregnancy or not, it is something else. But UPT positive means that you are pregnant. Now, if you come to us, it should be confirmed by beta HCG. Now, today what we do with beta HCG, we repeat it after 48 hours. And that 48 hours beta HCG means if it is doubling itself, means in the most of the cases, we are going to have a good pregnancy. And if it is not doubling, it will keep our antenna up. That means हो सकता है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है. तो इंतजार करते, थोड़ा सा प्रेगनेंसी को और बढ़ने देते हैं. एंड अराउंड 6 वीक्स अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है कि कोई क्रैम्प्स हो रहे हैं, कोई स्पॉटिंग दिख रही है, तो एक डेटिंग स्कैन 6 वीक्स पे करा लेते हैं. नाउ व्हाट इज द डेटिंग स्कैन? डेटिंग स्कैन मींस एन अल्ट्रासाउंड जो कि आमतौर पे टीवीएस ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी यानी कि इंटरनल अल्ट्रासाउंड यानी अंदर से अल्ट्रासाउंड किया जाता है. और ये अल्ट्रासाउंड हमें बहुत जरूरी कुछ चीजें बताता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटिंग की, आपका बच्चा कब पड़ा. मे बी आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी आपकी माहवारी का आखिरी दिन मानिए 13 अप्रैल है, लेकिन और उस हिसाब से आपका बच्चा आमतौर पे 14 दिन के बाद पढ़ना चाहिए. लेकिन हमें प्रेगनेंसी देख के समझ में आता है ये तो 6 हफ्ते का ना हो गया 5 हफ्ते का है, यानी डिलेड कंसेप्शन है, बच्चा बाद में पड़ा है. एंड 6 हफ्ते से लेके जो 12 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड है उस बीच में हम बच्चे की डेट बना देते हैं एंड दैट इज द फाइनल डेट. अगर बाद में जाके आपका बच्चा कमजोर होता है या मोटा होता है और
दिस EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी अगर चेंज होती है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, हम वही चेंज लेकर के चलेंगे जो कि हमने डेटिंग स्कैन से लेकर के अर्ली कंजेनिटल स्कैन के बीच में डिसाइड किए। कई बार क्या होता है कि बहुत ही अर्ली IUGR यानी कि बच्चा बहुत जल्दी कमजोर होना शुरू भी हो जाता है, उन केसेस में मे बी आपकी जो 6 वीक्स की डेट है और 12 वीक्स की डेट में एक मैसिव चेंज भी आता है, इट विल अगेन हमें एक अलर्ट देता है कि यहाँ पर सोचो कहीं ये बच्चा अर्ली IUGR में तो नहीं जा रहा है। लेकिन आज हम ज्यादा बातें अच्छी करेंगे, जो बातें कुछ हमें दुख देती हैं या हमें सोचने वाली होती हैं उनके लिए आगे की सीरीज आएगी। तो डेटिंग स्कैन में दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, बच्चा एक है या दो है। तीसरी चीज हम देखते हैं कि वो अपनी जगह पर है या नहीं है, मतलब इंट्रा यूट्राइन यूट्रस के अंदर है या एक्स्ट्रा यूट्राइन यूट्रस के बाहर है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आजकल थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी बढ़ गई है और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंड्यूसिव नहीं होती है, ये आगे नहीं चलती है, ये एक खतरनाक चीज होती है जो कि अगर समय से हम अगर इलाज करते हैं तो हम मेडिकल मैनेजमेंट टैबलेट से कर सकते हैं या हम इंजेक्शन दे सकते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स कुछ कंडीशंस में अगर हम लेट इसको पता करते हैं, पेशेंट कैन लैंड अप विद ऑपरेशंस, दैट इज अ लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। बट कुछ लेडीज जो है बहुत ही डिले हो जाती हैं या ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज्यादा ही डेंजरस होती है। मैं टैबलेट गलत बोल रही हूँ, टैबलेट से नहीं, हमेशा इंजेक्शन से देते हैं। और उस केस में जब हमें ऑपरेशन करना पड़ता है कई बार ये रप्चर हो सकती है अंदर और पेट में खून बढ़ सकता है, ये एक इमरजेंसी होती है और कई बार ट्यूब नहीं भी बच पाती है। और अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली बहुत ही अनस्टेबल होती है तो कई बार अगर आपके सेंटर पे पूरी फैसिलिटी नहीं मौजूद है तो ओपन करके भी उसको ठीक करने में कोई बुराई नहीं है, ऐसी कोई बात है, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लाइफ ऑफ द पेशेंट। सो अगर आपका यूपीटी पॉजिटिव है उसको बीटा एससीजी से कंफर्म करके डेटिंग स्टेन के बाद ही हम पूर्णतया इस उस पे डिसीजन पे बेचते हैं कि हाँ नाउ यू हैव अ लाइव प्रेगनेंसी। बेबी की हार्ट बीट आने के लिए भी इंतजार करते हैं, अगर हार्ट बीट नहीं आती है तो उसको मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। और मिस्ड अबॉर्शन के लिए कई किस्म के मैनेजमेंट हैं, हम वो आगे भी अगले किसी एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ ये बता रहे हैं बच्चे की हार्ट बीट आ गई, फिर हम आगे कैसे जाते हैं। तो मेरे लिए एंटीनेटल केयर क्या है? जब आप मेरे पास आते हैं या किसी भी डॉक्टर के पास आते हैं, एंटीनेटल केयर डज नॉट मीन अ क्लिनिकल केयर, इट इज समथिंग वेरी वेरी बियॉन्ड दैट। आपका प्रेगनेंसी होना कोई बीमारी नहीं है, इट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। व्हाट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन? आप ब्रश करते हैं, आप खाना खाते हैं, आप नहाते हैं, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है ना। खाना खाना, मॉर्निंग में फ्रेश होना, उसी ढंग से प्रेगनेंसी एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फिनोमेना है जो कि हर एक के लिए, हर एक स्पेशीज को बढ़ाने के लिए होता है कि बच्चा होता है। लेकिन हम होमो सैपियंस ना कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट है तो हम बातें कुछ ज्यादा करते हैं और कुछ ज्यादा समझते हैं, कुछ ज्यादा समझते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि एंटीनेटल केयर में आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया है न्यूट्रिशन, डाइट। आइडियली स्पीकिंग इस डाइट को मैं कहूंगी कि हर लेडी को प्री कंसेप्शनल केयर के लिए जरूर जाना चाहिए। प्री कंसेप्शनल केयर मींस कंसेप्शन के पहले जब आप प्लानिंग करते हैं, मीट योर डॉक्टर, बिकॉज जो गैमेट आपका आज बनता है वो 3 मंथ्स के बाद ही मैच्योर होता है बेबी बनाने के लिए। तो गुड गैमेट विल गिव यू अ हेल्दी प्रेगनेंसी, बैड गैमेट गिव यू अ बैड प्रेगनेंसी। तो न्यूट्रिशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारी ये नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट में न्यूट्रिशन पे ही होगी, क्योंकि आई बिलीव इन न्यूट्रिशन। अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक है आप 50% नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, मतलब आप कितने फिट हैं और आपको अपने आप को कितना फिट रखते हैं। प्रेगनेंसी में
बहुत सी एक्सरसाइज करने से आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छी जाती है और प्रेगनेंसी के बाद की आपकी जो कहना चाहिए रिकवरी होती है वो भी बहुत फास्ट होती है। आपका पेल्विक डायफ्राम मौजूद रहता है तो आपको उसके बाद की प्रॉब्लम लाइक वेजाइनल लैक्सिटी और यूरिन लीकेज, एनल डेफिशिएंसी, इन सब चीजों की प्रॉब्लम कम से कम होती है। थर्ड चीज आती है मेंटल हेल्थ। यहाँ तक कि अब गवर्नमेंट भी इसको अंडरस्टैंड करने लगी है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सभी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होने लगी है। देखिए मेंटल हेल्थ के 3 कारण हैं। एक तो वैसे भी प्रेगनेंसी हार्मोन बहुत हैवक करते हैं। दूसरा, हम तो आजकल जो है ना, आज की जो जनरेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली होगी। गूगल से पढ़ पढ़ के उसको हर समय डॉक्टर मेरा बच्चा ठीक होगा। अरे भैया आप क्यों गलत सोचते हो, बच्चा क्यों नहीं ठीक होगा? जब नहीं होगा तब देखेंगे ना। तो all type of stress, interpersonal problems, maladjustment in the marital family, job stress, so many stress are there, and ये सब आपको अफेक्ट करते हैं। और एंटीनेटल हेल्थ जो है आपका एक पुअर पेरिनेटल आउटकम की तरफ जाती है, यानी बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के बाद के आगे के बिहेवियर में 10 साल 12 साल के बिहेवियर पे भी ये इफेक्ट करती है। तो मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है आप अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इट इज बेटर to go to a clinical psychologist. But today's talk is only based on the clinical care. So for this clinical care is another most important, very important part of the broad 4 pillars of the antenatal care. आपके दिमाग में तो होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम तो सिर्फ क्लिनिकल केयर के लिए जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। टाइम हैज चेंज, वी आर टेकिंग द all 4 things in our mind and we are educating you for it and giving you all support. If I can't myself explain you, तो मैं आपको इसके लिए जो मेरे पास एक्सपर्ट मेरी टीम में काम करते हैं उनके पास भी भेज सकती हूँ। तो अब क्या आता है, 3 बहुत मोटी सी चीजें हैं। एक होती है मेडिसिन। मेडिसिन में सबसे चीज जो एक फिट है, जो खानी है, दैट इज अ फोलिक एसिड कॉम्बिनेशन। बहुत समय तक हम सिर्फ फॉलिक एसिड देते थे, बहुत से लोग अभी भी सिर्फ फॉलिक एसिड पे ही विश्वास करते हैं, बट समहाउ आई गिव फॉलिक एसिड प्लस। मैं आगे बताऊंगी और क्या देती हूँ। एंटीनेटल टेस्ट, दे आर द इंटीग्रल पार्ट। द टाइम हैज गॉन व्हेन योर दादी हैज डिलीवर्ड योर father and she hasn't got any antenatal test. That does not mean in today's 21st century आप अपने एंटीनेटल टेस्ट नहीं करें। आप अपनी दादी की कौन कौन सी बातें मांगते हैं? आप अपने हस्बैंड का पैर छूते हैं, मुंह पे ताला लगा के रहते हैं, सर पे पल्लू रख के रहते हैं? नहीं। तो फिर आप दादी की तरह एंटीनेटल टेस्ट ही क्यों नहीं कराएंगे? दादी की तरह अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं कराएंगे? तो जब चीजें चेंज होती हैं तो बहुत सारी चीजें साइंस के साथ आगे आती हैं और वो आपके बेनिफिट के लिए ही है। As a doctor only we can tell you, it is your choice whether you go with it or not. मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी यहाँ पर, जरूर पुराने जमाने में हर घर में 1 या 2 फीमेल्स ऐसी होती थी जो डिलीवरी के समय मर जाती थी या अपाहिज बच्चे डिलीवर करती थी। और आज के समय में एटलीस्ट इन अ मेट्रो सिटी इट इज अ रेयर फिनोमेना when someone dies during delivery. And third thing is a very important, with the age today girls are not coming at a 20 to 23 years, but वो बड़ी उम्र के साथ आ रही हैं, 30 साल 31 साल 32 साल 34 साल में आ रही हैं। यू आर कॉल्ड एल्डरली प्राइमी। ऑलरेडी आपके अंदर डिजीजेस होनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सी दवाइयाँ आप खाती हैं। तो ये जरूरी है कि उनको हम समझें और जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उसको भी हम प्रेगनेंसी के हिसाब से टैकल करके मेडिसिन चेंज करें। मान लीजिए आप एपिलेप्सी की कोई मेडिसिन खा रही हैं, तो कुछ मेडिसिन एपिलेप्सी की ऐसी हैं जो बच्चे के अंदर टेराटोजेनिक इफेक्ट कर सकती हैं और बच्चे के अंदर एब्नॉर्मलिटीज पैदा हो सकती हैं, तो उनको हमें चेंज करना पड़ता है, पॉलीफार्मेसी चेंज करनी पड़ती है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी हैव टू सी। नाउ one thing is a very common thing, whenever you come up we talk about trimester, 9 month 3 trimester 333, but in total when I talk about any education I talk about 2 first half, that is 1 to 20 weeks, and second half, that is 20 to 40 weeks. Again 20 half 40 is divided, but today we are going to focus more on 1 to 12, something on till the 20, but next series we will touch more things whatever we have left. So in the first half
1 to 20 is the time when baby grows in your side from a tiny egg to become a human being and completed it. Most of the abnormalities which today's science can pick with the ultrasound. Mind it, not all the abnormality can be picked. There are 5% chance in spite of everything you can have an abnormal baby. But 95% we can. In today's time, hardly at the end of the 9 month we deliver any baby who does not have a head or a big swelling on the back, which was a common occurrence when I was a student 40 years back. So for a smooth sailing, we are your navigator for this journey. As a healthcare provider, I can give you whatever I have learned. I can share with you, I can talk to you, but believe me, I am a navigator. I can hold your hand and we together go to the journey of a motherhood, which will never end. But at the 9 month, we will reach to the motherhood and then start the journey of motherhood. Maybe some other navigator you want at that time. So in this smooth sailing, we will provide you a basic education and we make you a party. And हम साथ चलेंगे. आपकी भी कोशिश यही है कि it will turn out to be a happy end. हमारी भी दिल की तमन्ना यही है कि आपको एक हैप्पी बिगनिंग मिले. एंड में कभी नहीं कहूंगी, इसको मैं एक बिगनिंग कहूंगी, क्योंकि जब बेबी आता है तो वो एक हैप्पी बिगनिंग की शुरुआत होती है जो आपके लाइफ में आपके साथ जाती है. फॉलिक एसिड प्लस सप्लीमेंटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बाकी चीजें अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, वो तो हम देंगे, लेकिन एवरी सिंगल मदर शुड टेक फॉलिक एसिड प्लस सप्लीमेंटेशन. बल्कि जरूरी है कि इसको आप पहले से शुरू करें. इट इज कॉल्ड अ प्री कंसेप्शन सप्लीमेंटेशन. दूसरी चीज है फूड. फूड हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्या खाते हैं आप वही पैदा करिएगा. और यही नहीं, आपको बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं फूड के थ्रू, उनसे भी आपको रुकना है. Lifestyle advice is very necessary. Please don't smoke. Don't take passive smoke. Father, if you are smoking, please don't smoke in front of your wife when you enter in your house, because in future you are not going to smoke in front of your baby if you really love your baby. आप अपनी सिगरेट बाहर फूंक के डालिए, आप अपने फेफड़े फूकिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं. लेकिन आप उस सिगरेट को बाहर जला के आएंगे, घर आके ब्रश करेंगे, मिंट खाएंगे और तब अपने बेबी के पास जाएंगे या मदर के पास जाएंगे. और आपको तो एज ए मदर अगर आप स्मोक करती हैं, हैव नो राइट टू बिकम अ मदर. इम्प्लीकेशन ऑफ द रिक्रिएशन ड्रग यूज. हम हर किसी को मालूम है कि रिक्रिएशन ड्रग से हम सिर्फ एक और जंकी, एक एबनॉर्मल बेबी पैदा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. अगेन यू आर नॉट फिट टू बी अ मदर. And alcohol consumption in pregnancy is absolute no. It can cause an alcoholic syndrome baby. Now, folic acid all the time. Everybody is talking about the folic acid. Folic acid helps synthesize the DNA. Everybody today know what is DNA. mRNA तो कोविड की देन है, हर किसी को मालूम है RNA होता है क्या और DNA क्या होता है. तो हमारी बॉडी DNA से बनी है. ये एक डबल हेलिक्स कार्ड स्ट्रक्चर होता है एंड हमारे सारे जीन्स क्रोमोसोम्स उसी के अंदर होते हैं. तो फोलेट एक न्यू सेल बनाता है और इसकी प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो हमने बताया ना, सर नहीं होता है, कमर पे फोड़ा होता है, इसको वो बचाता है. और इसको कब चाहिए होता है? जब आपको मालूम ही नहीं होता है आप प्रेग्नेंट हैं. फर्स्ट 7 days जब एंड 15 days जब आपका फर्टिलाइजेशन हो से आप प्रेगनेंसी मिस करते हो, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. इसलिए एनी रिप्रोडक्टिव एज वुमेन हु वांट्स टू बिकम प्रेग्नेंट शुड ईट द folic acid at least. Now what I give a B12, because most of the our women are vegetarian and they are deficient in B12, but B12 you don't
get from the ordinary any vegetable food, and the vegan to absolute no, because you don't take even milk, you don't take even curd. So here it is an animal origin bacteria, and you can get from B12. तो B2 and B12 फोलेट क्लोजली रिलेटेड है अपने एक्शन के ऊपर, एक्टिवेशन के ऊपर, और ये नर्व्स के ऊपर काम करते हैं, कोएंजाइम के ऊपर काम करते हैं. व्हाट इज कोएंजाइम? आपकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रिएक्शंस हो रहे हैं, उनमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनकी डेफिशिएंसी से नहीं हो सकता है. तो इसके अलावा ये आपके खाने पीने में भी हेल्प करता है. अब आता है विटामिन B6 जो कि करीब 100 रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है. एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड में चेंज करता है. ट्रिप्टोफैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपको नींद भी लाने में हेल्प करता है, वो नियासिन में चेंज होता है. और ये हीमोग्लोबिन के लिए भी जरूरी है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन से निकालता है, इम्यून फंक्शन में काम करता है और स्टेरॉयड हार्मोन की एक्टिविटी में काम करता है, फीटस के नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी होता है. तो हम जब फोलिक एसिड प्लस प्लस की बात करते हैं, बेसिकली what I give my patient is a folic acid, B12 and B6 combination, and I am happy that whatever is required, it is going, because I also know, you also know that you are not going to take the proper food all the time, especially in this today's busy life. You are a working woman, आप दौड़ रहे हो और आप काम कर रहे हो. नाउ हम क्यों बात करते हैं इसकी? बेसिकली अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? एक हेल्दी बेबी और मैटरनल रिस्क को मिनिमाइज करना. मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि प्रेगनेंसी में आपको कुछ नहीं होगा. एक बड़ी पुरानी सेइंग है, प्रेगनेंसी में औरत का दूसरा जन्म होता है. आपकी पूरी बॉडी में ना एक रेल चल रही होती है, और अगर आपकी बॉडी उसको नहीं संभाल पाती तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है. और हम दोनों मिलकर के जब साथ चलेंगे तो बहुत कुछ हम कंट्रोल करके, एंड ये आज की जो एलोपैथिक की इतनी रिसर्च हुई है, एलोपैथिक की इस रिसर्च के चलते मैटरनल मॉर्टेलिटी बहुत कम हो गई है, और उसके चलते जो है हम बहुत कुछ कर सकते हैं. तो हम अब क्या करते हैं इसमें, अगर हम इसमें बात करते हैं, सबसे पहले हम अर्ली एक्यूरेट एस्टिमेट एज निकालते हैं कि आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कि हम प्रीमेच्योर या पोस्ट मेच्योर बेबी कर दें. देखते हैं कौन से पेशेंट को रिस्क के चांसेस ज्यादा है. अगर एक ओबीज पेशेंट आ रहा है मेरे पास, एक 100-125 किलो की औरत आके बैठ रही, नेचुरली शी इज अ हाई रिस्क वुमन, शी कैन हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. एक पेशेंट है जिससे पहले से डायबिटीज है. दूसरा होता है कि आपको डायबिटीज बीच में हो जा रही है, जेस्टेशनल डायबिटीज, तो हम समय से उसको एंटिसिपेट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं प्रॉब्लम को. एंड व्हाट इज द बिगेस्ट चीज जो हम लैक कर रहे हैं आज तक अपने उसमें? पेशेंट एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन. पेशेंट से बात ना कर पाना, उनको एजुकेट नहीं कर पाना. तो मैं इस पूरी सीरीज के साथ चाहती हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे किसी और के पेशेंट हैं, अगर आप सोचते हैं कि हमारी सीरीज इस लायक है कि आपको उससे कुछ फायदा पहुंच रहा है, आप अपने दोस्तों को बताइए और इसमें जुड़िए. एंड वॉट एवर आई हैव लर्न इन माई 35-40 years career, I will try to give you back to all of you. यही नहीं, एक तो ये हमने बात की प्रेगनेंसी, but there's something more beyond 9 months. It does not stop here. Your motherhood will go beyond 9 months. So we'll educate you for a good pregnancy, safe pregnancy, and prepare parents for the responsibilities of the parenthood. My dear parents, today if you are not happy, you are having a problems in between yourself, आप चिल्ला रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, टेंस रह रहे हैं, you are transferring all those emotions to your baby. दीपिका मुझे 5 मिनट पहले बोल दीजिएगा. So now coming to the clinical care. Clinical care जो एंटीनेटल केयर का पार्ट है, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या हिस्ट्री का मतलब है? आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, कोई अबॉर्शन तो पहले नहीं है,
कोई आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरीज तो नहीं है, एबनॉर्मल बेबी तो नहीं है, आपकी फैमिली में तो कोई एबनॉर्मल बेबी नहीं है, आपकी अपनी कोई डिजीज तो नहीं है, आपकी फैमिली में तो कोई डिजीज नहीं है, आपके कोई ऑपरेशंस तो नहीं हुए, आप कोई दवाई तो नहीं खा रहे, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मे बी दैट ऑक्यूपेशन इज अ हैजार्डस ऑक्यूपेशन फॉर द बेबी. सो विद अ डिटेल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन एग्जामिनेशन, आपका ब्रेस्ट कैसा है, आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया कैसा है, आपके सिस्टमिक क्या है, कोई आपका कार्डियक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है. मान लीजिए आपको स्कोलियोसिस है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपको पोलियो है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है. Then there's a last leg of investigation. Believe me, this investigation is must for you. आपका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, मुझे मालूम ही नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, आई विल गिव हैंड ओवर योर बेबी which we have a massive jaundice at the end. Whatever happened 30-40 years back, when it is very difficult to have a RH negative woman with a RH positive husband to have another baby. आज भी आती हैं प्रेग्नेंट लड़कियां प्रीमेराइटल उसमें बेबी कर लेती हैं, चुपचाप जाके अबॉर्शन करा लेती हैं, RH निगेटिव होती हैं, इंजेक्शन नहीं लेती हैं, जब आती हैं तो उनका RH एंटीबॉडीज पता नहीं कहाँ होता है. रेगुलर विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर सर्टेन टाइम, अगर आप उस समय पे नहीं आएंगे, अगर आप 11 to 14 वीक्स पे नहीं आएंगे, मैं आपका अर्ली कंजेनिटल स्कैन नहीं करा सकती. सो रेगुलर विजिट इज मस्ट. द सर्टेन टाइम, द सर्टेन टेस्ट व्हिच इज रियली रियली रिक्वायर्ड. सो यहाँ तक तो बात होगी कि आप हमारे पास क्या आ रहे हैं. फिर देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई डोंट कॉल अ प्रेगनेंसी साइड इफेक्ट, देयर डिस्कम्फर्ट. अरे यार, आप माँ बन रहे हो तो आपको कुछ कुछ तो सहना ही पड़ेगा, तभी तो जाके आप आगे जाके बच्चे को पाल पाओगे. सो नॉजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, दे आर द नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम ऑफ प्रेगनेंसी. अगर ये हो रहे हैं, बी हैप्पी दैट योर बेबी इज ग्रोइंग नॉर्मल, दे आर प्रोड्यूसिंग some hormones which are causing it. If it is not there, I am very scared whether I am going to have a normal pregnancy for my patient or not. And mood swings again. So dear father, you are not carrying a baby, so कम से कम आप husband wife का mood swing तो carry कर लो. Frequency of urination is there because of the baby, growing baby put a pressure on the bladder. वहाँ पे irritation होता है, आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है. नॉक्ट्यूरिया यानी नाइट का यूरिन कॉमन है. स्लीपीनेस, आपको नींद आती तो सोइए ना, लीजिए छुट्टियां थी कुछ दिन की और सोइए. सोने से आपकी वॉमिटिंग कम हो जाती. जब आप जबरदस्ती जाके काम करते हैं तो आप वॉमिट ज्यादा करते हैं. देखिए, नॉजिया के लिए डाइट चेंज करिए, दवाइयां कम खाइए. हर एक दवाई, चाहे वो क्लास कैटेगरी बी मेडिसिन है, वो आपके बेबी को इफेक्ट करती है. लॉस ऑफ एपेटाइट, थोड़ा थोड़ा खा लीजिए. 3 महीने तक बच्चे को कोई एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए. थोड़ा थोड़ा खाइए, बहुत खुश रहिए. बल्कि ज्यादा खाइएगा ना तो ब्लड तो वहां रहेगा, तो बेबी के अंदर तो जाएगा नहीं. इस समय नेचर देखती है कि ब्लड को कहाँ जाना है. बेबी को इम्प्लांटेशन में ब्लड जाना है, आपका ज्यादा खाना डाइजेस्ट करने में नहीं जाना है. देन ब्रेस्ट टेंडरनेस, अगेन वो 12-14 वीक्स में चला जाएगा. दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी. कॉन्स्टिपेशन प्रोजेस्टेरोन के कारण आता है. पानी खूब पीजिए, धीरे धीरे पीजिए, एकदम से नहीं पी सकते हैं. फूड क्रेविंग होती है. ज्यादा गड़बड़ है, चौक मत खाइएगा, उल्टा सीधा मत खाइएगा. आकर के मिलिए, आपका डॉक्टर आपको बताएगा. हो सकता है आपको आयरन की कमी हो. लेग क्रैम्प्स काफी कॉमन होते हैं. पानी पीजिए, मालिश कराइए, मैग्नीशियम वाली दवाइयां खाइए. पाइल्स, प्लीज इससे जरूर बचिए. अभी हम 24 जून को जैक्सन पाल के साथ कॉन्स्टिपेशन के और एनोरेक्टल प्रॉब्लम पे एक बहुत बड़ा सा प्रोग्राम ला रहे हैं, जरूर अटेंड कीजिएगा. बैक पेन्स, यू नीड एक्सरसाइज. कैल्शियम ठीक है, विटामिन डी ठीक है, लेकिन यू नीड अ एक्सरसाइज. दैट इज अ बॉटम लाइन. वेरिकोसिटी, अगेन आपको वेरिकोसिटी मींस पैरों के अंदर वेन्स बन सकती हैं. आपके वल्वा के अराउंड मोटी मोटी वेन्स नीली नीली फील हो सकती हैं. बेसिकली आपका जो बेबी वहां पे कंजेस्ट करता है और प्रेशर करता है, तो जो वेन्स होती है उसकी वॉल्स फूल जाती हैं, तो उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है. सो क्वेश्चन है व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट. ये हम आगे बताएंगे. वर्क थोड़ा बहुत अभी आगे बताएंगे. व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट ये नेक्स्ट सीरीज है. सेक्स, yes you can have but not full penetration, not daily, no breast touching. Exercise full session हम लेकर के आएंगे, but exercise is the mainstay of a healthy pregnancy. Traveling for 3 months में I'm not very fan of the traveling.
करने की बहुत जरूरत है, करिए, लेकिन सोच के करिए, कुछ भी हो सकता है। वेट गेन हो जाएगा 3 महीने में, नहीं होता है, कम भी हो सकता है, कोई बात नहीं, खुश रहिए, बाद में हो जाएगा। मेडिकेशन बिना पूछे कुछ भी मत खाइए, नो ओटीसी, नो आयुर्वेदिक, नो होम्योपैथी। उनके कहने से कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, माय डियर फ्रेंड, जो साइड इफेक्ट नहीं होता है तो वो इफेक्ट भी नहीं करता है। आप नमक भी 2 चम्मच खा लेंगे ना तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, उसका भी साइड इफेक्ट है। हल्दी भी 2 चम्मच खा लेंगे, चक्कर आने लग जाएगा। तो हर चीज का मेडिकेशन, चाहे वो हर्बल हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, प्लीज डोंट टेक एनी ओटीसी मेडिसिन विदाउट डिस्कसिंग how to go about it in pregnancy. This we are going to discuss. So hemoglobin, your CBC is a very important thing. हम उसमें आपका अनीमिया देखते हैं। अगर आपका आयरन लेवल बहुत कम है, आपका बेबी भी अनीमिक होगा, आप फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाएंगे, आपका बेबी IUGR होगा, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है। आपके न्यूट्रिशन उसी से जाते हैं, आप बच्चे को ना तो ऑक्सीजन दे सकते हो, ना न्यूट्रिशन दे सकते हो, सीबीसी कम होगा। और हम सीबीसी में क्या देखते हैं, सीबीसी की कुछ बातें हमें ये भी बताती कहीं आपको थैलेसीमिया तो नहीं है। थैलेसीमिया एक और कारण होता है जिसमें कि अगर माँ और बाप दोनों थैलेसीमिक है तो वो एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा कर सकते हैं, और कई बार वो थैलेसीमिया मेजर बच्चा जो है उसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो सकती है, तो उसके लिए भी हमें डिसीजंस लेने लगते हैं। यूरिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, क्योंकि अगर यूरिन में बैक्टीरिया है, और चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया भी बहुत खतरनाक होता है। आपकी प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपकी किडनी में इन्फेक्शन फैल सकता है। नॉर्मली कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन का चूंकि इम्यूनिटी लेवल कम होता है, उसके लिए सब बहुत कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। वायरल मार्कर्स का मतलब है आपका HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अब आगे आने वाले दिनों में कोविड भी होगा, तो ये सब टेस्ट करना, VDRL, रुबेला, ये सारे टेस्ट हम आपके बच्चे के लिए करते हैं। अगर आपको कोई भी इनमें से बीमारी होती है, उसके हिसाब से बच्चे को मैनेज करना पड़ता है। ब्लड ग्रुप मैंने आपको बताया कितना ज्यादा जरूरी है। थायराइड इज अगेन वन थिंग, अगर हम शुरू से आपका थायराइड मैनेज नहीं करेंगे, आपके बच्चे के थायराइड के ऊपर असर पड़ सकता है, और एक आप हाइपोथायराइड बच्चा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड बच्चे के नॉर्मल नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी थी। शुगर, ओ माय गॉड, आई एम टू फैट फॉर दैट। मेरे तो शायद कुछ ज्यादा गाइडलाइन से शुगर करा लेती, क्योंकि हमारी आजकल PCOD इज अ वेरी कॉमन थिंग, एंड अदरवाइज ऑल्सो हमारी एल्डरली वुमेन जो है डायबिटीज के लिए ज्यादा प्रोन होती हैं, ओबीज वुमेन डायबिटीज के लिए ज्यादा प्रोन होती हैं। अदरवाइज ऑल्सो हमारे यहाँ प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज बहुत कॉमन है, इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज। तो आप जब हमारे पास पहली बार आएंगे तब से लेकर के एंड तक, कम से कम मैं तो 4 बार कराऊंगी, गाइडलाइन 3 बार कहती है, लेकिन मैं 4 बार कराऊंगी, क्योंकि एक डायबिटीज के सस्ते से टेस्ट से मैं आपके बच्चे को पूरी एक नई जिंदगी दे सकती हूँ, उसका इंटेलेक्ट कम होने से बचा सकती हूँ। 36 वीक पर भी शुगर गड़बड़ हो सकता है, खास करके अगर आपकी फैमिली में कहीं डायबिटीज है, आप मोटी हैं, आप PCOD हैं। मैंने वो भी बच्चे देखे हैं जो जस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज मदर की लास्ट में नहीं चेक हुई, ना किसी को मालूम है, और बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, बच्चे को झटका आया और बच्चे की तो पूरी जिंदगी खत्म हो। तो प्लीज शुगर की जांच जरूर कराएं, और उससे मत घबराएं अगर आपका डॉक्टर 2-3 बार करा लेता है। इन्फेक्शंस की भी कुछ इन्फेक्शंस की जांच की जाती है, जैसे टॉर्च इन्फेक्शन। अगर आप रुबेला पॉजिटिव है तो आपका बच्चा 67% एबनॉर्मल हो सकता है। अगर आपका टॉक्सो है तो आपके बच्चे को एबनॉर्मलिटी हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है, तो उन सब पे टेस्ट होते हैं। पैप स्मीयर अगर आपने पहले नहीं कराया है तो प्रेगनेंसी में जरूर कर सकते हैं, क्या मालूम क्या लेकर के आप बैठे। हीमोग्लोबिनोपैथी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को कहते हैं, जिसमें से थैलेसीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हमारे यहाँ पंजाबी हीमोग्लोबिन और ये सब मिलता है, जिसमें कि अनीमिया रहता ही रहता है। बट थैलेसीमिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन अफेक्ट जनरेशन एंड जनरेशन, and you can land up with a baby who may or may not be live. Now, biochemical screening, this is something new which has come in last decade. हम एक डबल मार्कर कराते हैं 9 to 12 वीक्स में आपके लिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें एक साइन देता है कि आपका बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और उसके हिसाब से अगर आपका बच्चा एबनॉर्मल है तो अगर आप चाहिए तो हम उस बच्चे का पहले अबॉर्शन कर सकते हैं। क्वाड मार्कर 15 to 20 वीक्स पे होता है। फिर एक नया टेस्ट आया है, उसको NIPT कहते हैं। उसमें माँ के खून में से बच्चे का सेल निकाल करके
अगर हमारा डबल मार्कर एबनॉर्मल दिख रहा है तो वो अगर 80% ठीक है तो NIPT 99% ठीक है। एक नई चीज और आ गई, उसको हम PIH स्क्रीनिंग कहते हैं। अगर हमें लगता है कि आप एक कैंडिडेट हैं जिसका PIH बाद में, यानी PIH का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो हम वो स्क्रीनिंग करते हैं और उस स्क्रीनिंग में हमें ये मालूम पड़ जाता है आपको कितने % चांस हैं लेट PIH अर्ली PIH होने के, तो हम आपको एकोस्प्रिन शुरू करा सकते हैं। फाइनली अनवर्ड माइनोसेंटेसिस, अगर हमें ये डाउट है कि आपके अंदर कुछ नॉर्मलिटी है, आप 40 साल से ऊपर हैं, जब नॉर्मल बेबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बच्चे के चारों तरफ का पानी लेकर के और उसमें ये टेस्ट करना पड़ता है कि बच्चा कहीं एबनॉर्मल तो नहीं है। देखिए एम्नियोसेंटेसिस से थ्योरेटिकली तो सब कुछ हो सकता है, बट प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में आज तक एक भी अबॉर्शन नहीं देखा है अगर आप प्रॉपर जगह से कराएंगे। अल्ट्रासाउंड बच्चे को अफेक्ट नहीं कर सकता है। अगर आपकी दादी ने नहीं कराया, आपकी मम्मी ने नहीं कराया, इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीजें नई आ गई हैं आप भी ना कराएं। डेटिंग स्कैन की मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। एंटी स्कैन बहुत जरूरी है। 11 to 14 वीक्स में हम बच्चे के बारे में बहुत कुछ आपको बता सकते हैं कि बच्चा एबनॉर्मल है या नहीं है, और आप उसके लिए नेक्स्ट स्टेप लगा सकते हैं। लेट कंजेनिटल स्कैन 18 to 20 वीक्स पे होता है आमतौर पे। मैक्सिमम स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी माइनस हार्ट, अब तो हालांकि नए अल्ट्रासाउंड हार्ट की भी एबनॉर्मेलिटी बताने लग गए हैं, तो इनको हम करके कुछ चीजों को हम वहीं पर टैकल कर सकते हैं और कुछ इसको टैकल नहीं कर सकते हैं। वी कैन टेल यू, प्लीज टेक योर डिसीजन वेदर यू वांट टू दिस बेबी और नॉट। दिस इज नॉट आवर चॉइस, दिस इज योर चॉइस वेदर यू वांट टू कंटिन्यू दैट बेबी और नॉट। तो हर 3 to 4 वीक्स पे अप टू 28 वीक्स हम बुलाते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, आप भी अपने क्वेश्चन आंसर करते हैं। ब्रिंग योर लिस्ट एंड टॉक टू योर डॉक्टर। Believe me, if you are not comfortable with me or your doctor, any doctor, please change your doctor. You have to be comfortable with your doctor. Your doctor may be not very lip chip, but if she is giving you a proper advice, in time advice, this is more than enough. And until unless you have a mental rapport with your doctor, please don't continue. ना तो ये आपके हक के लिए अच्छा है, ना तो वो उसके हक के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आप पूरे समय distrust में रहेंगे, it is like a relationship, it is just like a marriage. Maybe this marriage is for 9 months, but if you don't have a trust, how can you go with that your partner? In this pregnancy, a healthcare provider is your partner, so either you believe or change. Very easy to change ना, डॉक्टर को चेंज करने में कोई आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। सो अगर आप बार बार मिलते रहेंगे, आपके डाउट्स कम होते रहेंगे। गूगल देवता आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, सिर्फ आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आपका पीयर ग्रुप आपको कुछ नहीं बता सकता, उसके पास इतनी अकल है जितनी आपके पास है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग अगर बेइंतहा है, चिल्स आ रहे हैं, फीवर आ रहे हैं, पेशाब में जलन है, डायरिया है, क्रैम्पिंग ज्यादा है, ब्लीडिंग है, ये डेंजर साइन है। इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करें। और कॉल अ डॉक्टर इज मोस्ट स्टूपिड थिंग। हर चीज कॉल पे नहीं हो सकती है, कई बार आपको आना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, कोरोना में भी आना पड़ता है, और फोन के ऊपर काम नहीं हो सकता है, ना प्रैक्टो पे कंसल्ट करके काम हो सकता है। जो डॉक्टर है स्टिल अ ओल्ड टाइमर, means old timer means does not a old woman like me, even a young doctor. The old time practice of the medical practice is the still best practice. We are doctor, we are not a hospitality persons. Please don't equate your hospital to hospitality. जब से इसको hospitality में आपने चेंज कर दिया है, तब से चीजें ज्यादा खराब हो गई हैं। ये 9 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ही रहेगा, he can't be a hospitality hostess. Now, आपकी बॉडी द मोमेंट यू बिकम प्रेग्नेंट, आपकी बॉडी चेंज होती है, बहुत तेजी से चेंज होती है। आपका हार्ट 1.5 टाइम रन कर रहा होता है जब आप बैठे होते हो। प्लासेंटा एक नया एंडोक्राइन का ऑर्गन है जो आपके अंदर टेम्परेरी डेवलप करता है। इट्स अ ऑर्गन जो कि बच्चे और माँ के बीच में एक इंटरफेस है। ये अपने पता नहीं कितने हार्मोन निकालता है, जिसके कारण पूरा का पूरा बच्चा चेंज हो सकता है, खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है। प्लासेंटा किसी के काबू में नहीं आता है, इसकी ग्रोथ अपने काबू में होती है, तो इसको भी हमें वॉच करना पड़ता है। एंडोक्राइनल चेंजेस होते हैं, आपकी TSH थायराइड ग्लैंड आपकी
पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका ओवरी, आपका एड्रिनल ग्लैंड, सब में चेंजेस आते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर प्लासेंटल हार्मोन्स का बहुत इफेक्ट होता है। रिलैक्सिंग करके एक हार्मोन निकलता है जो बॉडी को चेंज कर देता है। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है अपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को संभालने के लिए, कैल्शियम और विटामिन डी के साथ। रीनल सिस्टम, आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है क्योंकि आपकी फिल्ट्रेशन रेट बहुत चेंज हो जाती है, क्योंकि बच्चे का भी जितना एक्सक्रीशन होता है आपकी बॉडी से निकलता है। रेस्पिरेटरी चेंजेस होते हैं क्योंकि आपका पूरा पूरा डायफ्राम ऊपर हो जाता है, हार्ट का लेवल छोटा हो जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत कई बार होती है अगर पेट बहुत ज्यादा निकल आता है तो। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स चेंज होती हैं। कार्डियोवैस्कुलर तो माय गॉड, इट इज एब्सोल्युटली चेंज, यू आर ऑन अ रोलर कोस्टर। आपके ब्लड को नीचे से हार्ट में पंप करना है और बेबी के अंदर पंप करना है, बेबी से फिर ऊपर आना है, तो एक साइकिल चल रही है अंदर कंटिन्यूअसली। आप बैठे हैं, आपको लगता है आप सो रहे हैं, लेकिन वो तो चल रहा है अंदर, बच्चे के अंदर खून जाना आना वो नहीं रुकता है। और बहुत सारी आपके स्किन की चेंजेस भी होते हैं। तो अब एक चीज है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन आपको प्रोजेस्टेरॉन दिया भी बहुत जाता है, जरा सा कुछ होता है प्रोजेस्टेरॉन खा लो। तो सच्ची बोलूं ना, मुझे भी नहीं मालूम मुझे इतना प्रोजेस्टेरॉन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे ये मालूम है प्रोजेस्टेरॉन देने से कोई खास नुकसान नहीं है और बहुत सारी प्रेगनेंसी हम बचा लेते हैं, क्योंकि ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन से बचा लेता है, इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस करता है, यूट्रस को रिलैक्स रखता है, और कई बार ये आपके ब्रेस्ट को भी प्रिपेयर करता है फॉर द दूध पिलाने के लिए, रेडी करता है लैक्टेशन के लिए। अब इसको देखिए ना, बच्चे ने कैसे उठा करके पूरे पूरे लंग को ऊपर फेंक दिया है, हार्ट को शिफ्ट कर दिया है। तो ये सारे जो प्रेशर आते हैं इसके कारण कई बार आपके रिब केज में बेंतिया पेन भी होता है, खास करके अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है और आपका रिब अच्छा नहीं है। हाँ, ये स्लाइड कैसे समझो, फोटो खींच लीजिए, या मैंने भी तो नेट से ही उतारी है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप देखो ना आपकी बॉडी में कितने सारे चेंज हुए। आपकी बॉडी का एक कर्व होता है वो सीधा हो गया बच्चे को संभालने के लिए, तो बोझा कहाँ से उठेगा। आप चलोगे तो ऐसे ऐसे चलोगे क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल लूज हो गई, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, यूरिन में आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, ब्लैडर टोन कम हो गई, यूट्रस बढ़ता जाएगा, सब कुछ ऊपर डालता जाएगा, ब्रेस्ट हैवी हो जाएंगे और ज्यादा थूक आएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, इसोफेगल रिफ्लक्स बढ़ जाएगा, हेमोरॉइड्स होने लगेंगे कॉन्स्टिपेशन के कारण, वेजाइना में जो है एक अजीब सी कई बार आवाज आने लगती है, कुछ सेंसेशन फील होते हैं, सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, स्किन में तो बहुत ही चेंज आ जाता है, बहुत ही रोना होता है, चेहरा काला हो जाता है, मास्क से बन जाते हैं, बदन में काली लाइनें पड़ जाती हैं और साथ में स्ट्रेच मार्क भी आ जाता है। पूरा पूरा सेशन करूंगी, चिंता मत करिए। फिर एंडोक्राइन, प्लासेंटा, थायराइड, पिट्यूटरी मैंने आपको बताई। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन, मैं कैसे सोऊं? तो देखिए 12 हफ्ते 14 हफ्ते तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसे मर्जी हो सही है। उसके बाद आपको बाई करवट ज्यादा, थोड़ा दाई करवट भी सो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए आपका बच्चा आपकी मेन वेन को दबा देता है। जब आपकी मेन वेन को वो दबा देता है तो बच्चे में ब्लड नहीं जाता है, इसलिए आपको पीठ के बल नहीं सोना है। और जो मैंने आपको ब्लड के लिए बताया ना, ब्लड के लिए आप जरूर सोचिए कि क्या होता है। जो सबसे बड़ी बात है, आपका ब्लड 16 टाइम्स गाढ़ा हो जाता है, यानी कि आपके खून के जमने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें अगर खून बढ़ जाता है, जम जाता है, तो आपको एबॉर्शन या अर्ली डेथ्स भी होती है, इसलिए आपको एकोस्पिन या लोनोपिन जैसे इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर जो 16 टाइम बढ़ता है, भगवान ने तो इसलिए बनाया है कि आपको पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हैमरेज ना हो, डिलीवरी के बाद आपका खून जम जाए, लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। इसलिए पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, बैठी मत रहिए, 24 घंटे लेटी मत रहिए। आजकल रेस्ट कोई नहीं देता है, रेस्ट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स, यानी फालतू मत घूमिए, ज्यादा काम मत करिए, सेक्स कई बार पेल्विक रेस्ट होता है, यानी सेक्स मत करिए, दौड़ भाग मत करिए, ट्रैवलिंग मत करिए। आपका खून पतला हो जाता है, पानी बढ़ जाता है, तो 1 ग्राम बढ़ सकता है, वहां तक नॉर्मल है। ल्यूकोसाइटोसिस यानी 15,000 तक नॉर्मल है, उसके ऊपर जाता है तो गड़बड़ है। प्लेटलेट में कोई चेंज नहीं होता, अगर प्लेटलेट में कोई चेंज हो रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। ESR बढ़ जाता है, मत घबराइए, कोई टीबी नहीं हो रही है। और आयरन के लिए आपका आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। अब हम अगर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आते हैं ना, तो देखिए ना, तो क्या हाल हो रहा है आपका,
सब कुछ चेंज हो जाता है और आपकी मसल्स के ऊपर स्ट्रेचिंग आ जाती है। अगर मसल कमजोर है तो वो उसको संभाल नहीं पाती है, मसल कई बार टाइट हो जाती है, तो यू नीड अ फिजियोथेरेपी। मैं अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ आपको फुल सेशन दूंगी, इसके बाद जरूर जुड़िएगा। तो इसको बस आप अभी आज देख लीजिए कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, जिसके कारण आपको एक्सरसाइज की और राइट पोस्चर की कितनी जरूरत है। दर्द के लिए गोली नहीं खानी है, प्रोसीन कुछ नहीं करने वाला, और ब्रूफेन और वोवरन तो खाइएगा ही मत, बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो आपको हेडेक्स प्रेगनेंसीज में होते हैं, उसके कई रीजन होते हैं। कई बार ग्लाइकोजन कम है, कई बार स्ट्रेस कम है, कई बार सिर्फ ये पेन जो है तो ईडिमा के कारण, टाइटनेस के कारण होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम, आपकी जो हाथ है ना, यहाँ पर दर्द होने लगता है, नसें दबने लगती हैं, खिंचने लगती हैं, आपकी जो प्यूबिक बोन है उस वहां पर डिसफंक्शन हो जाता है, पैरों के अंदर फेसियाटिस हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज की, ट्रिगर रिलीजिंग की, इन सब की चीज की जरूरत होती है, दवाइयां इसका आंसर नहीं है। जब मैं स्किन चेंज की बात करती हूँ तो इसकी केयर हमें पहले से करनी पड़ती है, प्रेगनेंसी में करनी पड़ती है और प्रेगनेंसी के बाद में करनी पड़ती है। तो आई विल कम विद डिटेल skin changes pre-pregnancy, during pregnancy and the post-pregnancy, how we take care of our skin. But it is a normal thing because of the hormones of the pregnancy. तो देखिए क्या क्या हुआ। प्रेगनेंसी का फेस मास्क बन गया, यूरिनरी लीकेज, लेग क्रैम्प, ब्लीडिंग गम्स, टू डिके। तो ओरल हाइजीन बहुत जरूरी है। आई विल रियली कम विद ओरल हाइजीन ऑल्सो। प्रेगनेंसी में वो अर्ली प्रेगनेंट प्री टर्म डिलीवरी भी करा सकता है अगर आपको ओरल इन्फेक्शन है। बल्जिंग वेन्स इन रेक्टम, हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन, एक्सेस गैस, इची बेली। लेकिन अगर ये इचीनेस पूरी बॉडी में है तो ये कोई और बीमारी होती है, वो बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, उसको इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस कहते हैं। तो जब हम कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करेंगे तब इसको भी डिस्कस करेंगे। और स्वेलिंग फील होती है और नाक भी आपकी चौड़ी हो जाती है। सो क्या करना है, डॉक्टर के पास जाइए, जब बुलाए जाइए, खाना अच्छा खाइए, नो सेल्फ मेडिकेशन, टेक फॉलिक एसिड, अपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं दोबारा पूछिए, नहीं समझ में आ रही है छोड़ दीजिए, दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। प्लीज कुछ भी हो जाए स्मोकिंग मत करिए, अल्कोहल मत पीजिए, और उन लोगों से भी दूर रहिए जिनको कोल्ड से इन्फेक्शन। अब कोविड के बाद तो खैर सबको सब कुछ समझ में आ गया, बहुत ज्यादा नहीं समझाना है। ये स्लाइड देखिए, इसके लिए मैं आऊंगी फिर डिस्कस करूंगी। फिजिकल, मेंटल, बिहेवियर, हर चीज आपको स्ट्रेस करता है, और इस स्ट्रेस से जो आपका दिमाग है, उसका इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सब पे स्ट्रेस जाता है। और ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपकी बॉडी को, बेबी के ब्रेन को, हर चीज को चेंज करता है। एंड यू कैन डिलीवर अ जिटरी बेबी, you can deliver a baby who can have a ADHD, you can deliver a baby who can have a high chance of having schizophrenia, preterm birth and many things else. Don't take it lightly. काम करिए जब तक आपके वर्किंग प्लेस पे टॉक्सिक एक्सपोजर नहीं है, या आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, या आपको बताया गया आपकी सर्विक्स ठीक नहीं है, यूट्रस ठीक नहीं है। अगर किसी भी ढंग से बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, छुट्टी लीजिए, आराम करिए, काम तो फिर मिल जाएगा, बच्चा दोबारा मिलना मुश्किल होता है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगी, अभी तो शुरुआत है जिंदगी की, सफर बहुत लंबा है और अच्छा अभी आना है। अभी से खुश रहिए, तभी तो हम एक अच्छे बच्चे के साथ और अपने नेविगेशन को वहां पर खत्म करके और एक नए रास्ते पे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। मैम 5 मिनट्स रह गए थे, बोलने लगी थी मैं। कोई बात नहीं है। अब हम मालूम हमारे साथ कुछ पेशेंट भी जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, हम सिर्फ डॉक्टर्स को ही बोलते चले जा रहे हैं। तो अगर सिर्फ डॉक्टर्स हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि अगले बार आप कुछ और भी चाहते हैं तो हमें बताइएगा, हम उसको लेकर के आएंगे, बात करेंगे। और प्लीज हमारे इसको अपने पेशेंट्स को जोड़िए, क्या पता किसको क्या फायदा पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। Over to you, Ma'am, Deepika. this recording is also available on the Facebook link I have given. If anybody wants to share this with their patients, they can share the link. And the patients can watch. Some people were not able to join. एक ही क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को मैं ही आंसर कर देती हूँ। डॉक्टर, इज इट नॉर्मल टू हैव हाई हार्ट बीट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? हाँ, 100 तक की हार्ट बीट नॉर्मल होती है।
100 के ऊपर 1-2 तो और हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, उसे वॉच करिए, देखिए किस समय बढ़ती है। अगर ये एक कंटिन्यूअस फिनोमेना है तो आपका एक कार्डियक इवैल्यूएशन जरूरी है। कई बार ये नॉर्मल होता है, कई बार ये किसी हार्ट बीट की प्रॉब्लम की एक पहली पहचान होती है कि इस समय हमें देखना पड़ता है। डॉक्टर संजीता परवीन ने इनफर्टिलिटी के बारे में पूछा है। ठीक है, आगे आने वाले में लेट मी फिनिश माय नर्चरिंग सीरीज, आई विल कम विद द pre-conceptional counseling and the pre-infertility also. Thank you, Dr. Sanjita, and thank you, Madam Verma, for your kind words. I think from my side, the questions are finished. Over to you and for the further. There is one more question by Dr. Rathod asking whether all pregnant patients require PAP. देखिए, पैप के लिए यह पैप में 2 चीजें होती हैं। क्यों मैं पैप कह रही हूँ? अगर आपके पास एक पेशेंट आता है और उसका पैप स्मीयर लास्ट 3 years में नहीं हुआ है, she is a candidate for pap smear. Every single woman should have a pap smear. और ये आपका जो दूसरी चीज होती है, it's a window of opportunity. Maybe she has a dysplasia, maybe she has a CA in situ, और आपने उसमें मिस कर दिया तो 9 month तक तो पता नहीं क्या होगा। So as a doctor, it is your primary physician, it is your responsibility. As such, it is not part of a pregnancy, but I always say every doctor should see the window of opportunity. और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी होती है ना, उस समय पेशेंट का मेंटल मेकअप होता है आपकी बात सुनने के लिए। उस समय आप जो भी कहोगे वो सुनेगा, समझेगा, क्योंकि उसको उसकी इंपॉर्टेंस उस समय लग रही होती है। तो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट आई ऑलवेज मेक अ पार्ट ऑफ माय, यहाँ पे मैंने हर वो चीज डाली है जो मैं खुद भी करती हूँ। पैप स्मेयर इज अ पार्ट ऑफ माय एंटीनेटल। Thank you very much, ma'am. And to take it further, good evening to everyone. So there are a few questions which mostly the patients ask us, and to make it very simple, I will try to answer those. So how do we calculate the date in pregnancy? Most of our patients ask us, how do we calculate the date? So we use the first day of your last menstrual period as the starting line of your 40-week pregnancy. यानी हम 9 महीने का डेट्स कैलकुलेट करके उसमें 7 days एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं और उसमें हम आपके डेट्स बताते हैं। सो जिसका पीरियड कभी कभी क्या होता है, कभी आजकल पीसीओडी देखते हैं और बाकी बीमारी में कभी कभी डिलेड पीरियड्स होते हैं, उसके प्रॉपर पीरियड्स नहीं आते, वहां पे डेट की प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मैम ने कहा कि डेटिंग स्कैन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद आप 12 weeks पर लेवल 1 अल्ट्रासाउंड करते हैं, उससे भी हमारे को प्रॉपर डेट्स पता चलते हैं, उसी हिसाब से आपको डेट्स बताए जाएंगे। नाउ हाउ मच वॉमिटिंग एंड ब्लोटिंग इज नॉर्मल इन अर्ली प्रेगनेंसी? Ma'am, would you like to comment on that? No, आप continue रखें। So progesterone is a cause of this, vomiting, and ma'am has told you about that, and it slows down the digestive system, and there is excessive acid production. Bloating is very common, and if it comes to that level that you get dehydrated, which doctor will do a urine ketone body test to assess the dehydration, and you might need IV fluids if somebody is dehydrated, the pregnant lady is dehydrated. And nausea and vomiting usually subsides by the weeks of 12 to 14, and so hang in there only 4 to 6 more weeks until you get some relief. So that should be taken as a stride. So next question is, what is the reason of constipation in pregnancy? This also we have already told about it, but what you need is adequate hydration, यानी करीबन 8 से 10 ग्लास पानी या लिक्विड्स किसी भी फॉर्म में आपको लेना बहुत जरूरी है। आपके फ्रूट्स और फाइबर डाइट काफी अच्छा होना चाहिए, और अगर इसके अलावा भी किसी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है तो हम लोग सिंपल लैक्सेटिव लाइक इसबगोल देते हैं, और उससे ज्यादा भी चाहिए होता है तो डॉक्टर जो भी आपका होगा वो आपको वो प्रिस्क्राइब कर देगा। सो हाउ टू टैकल द फूड क्रेविंग्स? फूड क्रेविंग्स तो बहुत होती है, बट उसको कैसे टैकल किया जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ईट हेल्दी। विल कम विद प्रॉपर सीरीज, नाउ दैट सीरीज हैज स्टार्टेड, विल कम विद प्रॉपर न्यूट्रिशन one session, will tell you what all to eat with the dietitian, and small and frequent meals like ma'am told you, and avoid oily and fried food, avoid too much sugar and maida, because these days we see a lot of PCOD patients, and
for them this sugar and maida is not good at all. पाइका मीन्स जो मट्टी खाते हैं या स्लेट खाते हैं, उस कभी कभी वो भी हम पेशेंट्स में देखते हैं, और ये एक साइन अनीमिया का होता है। और इसके अगर किसी को ऐसी कोई क्रेविंग आती है तो वो प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाएं और अनीमिया का इलाज करें वो। So how much should we exercise in first trimester? I have a very simple answer for that. If you are an athlete or have been exercising, you can continue your exercise. If you are not doing any exercise, then start slowly. It's not that somebody start. This is not the pregnancy is not a state where you should be exercising too full from the first day. So you start slowly so that you get adapted to the exercise. It's very important to exercise, whatever may be the mode of delivery, either cesarean or normal delivery or whatever, you have to exercise, because this improves the postnatal period of yours. You can do maternity yoga under the guidance of an expert. If you haven't worked out in a while, don't start out with a bang. Overdoing it can lead to injury, nausea, overheating, and just plain exhaustion. Plus, it will make you likely to quit when you are not just started. So I am getting fatigued. What should I do? So too much of fatigue sometimes is extremely irritating. So it's a very common symptom, and especially in the first trimester, your body is working overtime preparing for motherhood as it develops the placenta and the baby's growing. Manage your diet, you rest in between. Do not work continuously. We see that lots of our patients are working on the computer as well. So it's very important to take breaks. After every 1 or 2 hours, go for about 5 to 10 minutes break. And once you finish the meeting, maybe it has started, it has been there for maybe a longer time. So take a break and sit properly on the chair. So sit properly on the chair with good back support. So why is there frequent urination? Ma'am has already told you about the frequent this micturition. The hormone progesterone and HCG increase the blood flow to kidneys, and growing uterus also produces pressure on the bladder. So, but that doesn't mean that if it is too much of going to the toilet and you have some irritation also, that then it might be because of some infection also there. So please contact your doctor. Tell her if she thinks it's physiological, it's okay. If she thinks that a urine test or a culture has to be done, she will do it. So this is a very common question asked: how should we remove the unwanted hair? And should we dye our hair or something like that? These are very, very common questions asked. So hair removal by shaving, threading, plucking is allowed, but avoid waxing, especially in the pelvic area, and no lasers and no lotions or creams to be applied, because everything gets absorbed and we don't know, it might affect the baby. So regarding the coloring of the hair, we don't appreciate you using the colors for the hair for the time being. You can use a simple mehndi, but not that mehndi which has a lot of chemicals in it. And how do we differentiate between normal and abnormal vaginal discharge during early pregnancy? Because of the hormone progesterone, there is a little bit of discharge which thickens due to hormonal effect. If it is yellow or it is foul smelling, then you have to inform the doctor. If you have to frequently change your undergarments, it needs to be seen. Maintain proper perineal hygiene and do not apply any cream or lotion. Especially we see lots of patients using oil for itching or anything, and they say that ये normal है. बड़े लोग घर में बोलते हैं ऐसा होता है, इसमें थोड़ा सा तेल लगाओ, ये ठीक हो जाएगा. But let us tell you that these oils are very good medium for growing bacteria, and you can land up in problem. Especially if you are itchy, please see your doctor. So when to see your doctor for this pregnancy discharge? If there is very heavy discharge, it is thick, like I told you, foul and smelling, it changes the manner that concerns you, and there's a large quantity, which I told you that frequent change of undergarments is a sign. This is also very commonly seen that patients get a lot of occasional headaches. So what should we do with this problem? So the causes of this headache can be fatigue. It can be hunger, simple. You have not eaten for a longer period of time, so you need to eat something. Too much of stress also can cause the occasional headache.
hormonal changes do produce headaches, but they are not very irritating and very severe. Excessive heat or cold temperatures can also give rise to headaches, and with too much of screen time this time, the COVID times, especially the screen time has increased too much, and this also can give headache. And you have to find out what is the cause of your headache, and then we can treat that headache. Very important question asked by almost many of the patients is, does ultrasound harm the fetus? And when should the first ultrasound be done? And that has already been told in detail. But ultrasounds are quite safe for your baby when done by your healthcare provider, because ultrasounds are simple sound waves instead of radiation. They don't give any radiation. It's safer than X-rays. Providers have used ultrasound for more than 30 years and they have not found any dangerous risks. And let me tell you that your smartphone is more harmful than the simple ultrasound. Sometimes we have to do repeated ultrasounds in very high-risk patients. And in our practice of about maybe, like ma'am was telling, 35 to 40 years, we have not seen any side effect of ultrasounds. So another question frequently asked is, I am getting fainting and dizziness sometimes. So this is very common. या फिल्मों में भी आपने देखा होगा, चक्कर आते थे तो कह रहे ऐसा लगता है कि बहू का पाँव भारी है. So dizziness is a part of the pregnancy, and it happens usually because of prolonged standing. There may be pooling of the blood in the legs. Also, whenever you feel like dizziness, so immediately you lie down, keep your legs a little bit up, and you will feel better. Do not stand for too long. Frequent walks are important. Do not take stress, but sometimes because of stress also, we are emphasizing it again and again that stress is not good for a pregnancy. And remember the last slide of Dr. Agni's presentation. And eat something if you feel dizziness, because sometimes hypoglycemia, that is a less sugar levels in your body, can also lead to dizziness. This is a very important slide, and here it is round ligament pain. Now, usually you have, the pain in the groin area. There we have this ligament, which is called as the round ligament, and the ligaments on the right and left side of your lower belly are stretching out and getting thinner. As your belly gets heavier, the weight pulls on the ligaments, causing sharp or dull pain, especially when you walk or turn to the side. Very, very commonly told by the pregnant ladies. And for this, you have to keep your feet upright up and avoid sudden movements because they can get stretched. And you can stretch before sneezing. And especially exercise is very, very important for this round ligament pain. This is common with stressed people, like I feel low, what to do. So for de-stressing yourself, simple these tips like listening to good music, talk to your baby inside. From 5 weeks of, they say that research has proved that 5 weeks, baby also, you can talk to your baby, and this has an effect on the baby's growth. And do yoga or mindfulness. Keep yourself busy with your hobbies. Keep a positive diary. Means every day whenever you are, you spend that whole day and keep a diary and write there what positivity, what good news, or what good you have done in the daytime. Just write it down, and you will see that you will get a lot of positives at the end of the day. So pursue your positive thoughts with this negative COVID, atmosphere, environment these days. Lots of negativity around. Just pursue your positive thoughts. Do not watch any wild serials on the TV or net. Avoid those Netflix serials which are very, rabid, I say. Then avoid social media. Too much of social media posts are not good. Some fake news, and especially news you should not be watching too much. And take help if you are too depressed. We thank you for your patient hearing, and we wish you a very beautiful journey with your bundle of joy. Thank you very much. If you have certain questions, we will be more than happy to answer your questions. Somebody is asking, ma'am, the role of ginger. Ginger is a wonderful thing as an anti-vomitic thing. And specifically, I don't allow tea as such to my patient. And हरी, गुलाबी, नीली, पीली तो teas में so-called green tea में तो मुझे कोई विश्वास नहीं है.
what I tell my patient, you are very fond of taking tea, take tea, put little bit adrak. आजकल तो ताजी हल्दी भी मिलती है, टेक दैट ताजी हल्दी, उसको डालिए, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डालिए, उसको उबाल लीजिए, थोड़े से दाल डाल सकते हैं। तो इसको आप पीने से, इन चीजों से आपको और तो जो फायदा होता ही होता है, ये वॉमिट को भी सप्रेस करती है। तो जिंजर एज सच, आप जिंजर की हल्की सी कैंडी भी मुंह में दबा सकते हैं। तो कई बार जो पेशेंट्स कहते हैं ना हमारा मुंह का आइडिया बहुत खराब हो रहा है जायका, वो भी ठीक हो जाता है। और जिंजर से उस किस्म की कोई एसिडिटी वगैरह नहीं होती है जो आपकी शायद हमजोला और खाने से होती है। When some patients are taking zinc and all those these immunity boosters in the first trimester as well, should they continue? I will not say. Yes, they should not continue. बिकॉज देखो एक्सेस हर चीज की बुरी है, और कोविड में ठीक है, किसी को कोविड है खा लो भाई जो भी, लेकिन प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी रहेगी और जैसे चलती आई है वैसे ही चलेगी। They should not take unnecessary you can take the vitamin C, but go for a vitamin C in diet. आप हर चीज में जब नेचुरल की बात करते हैं तो why you want supplement when your own peer group are saying eat those things, you start eating the medicine is medicine. So मेरी एक चीज और मुझे कहनी है, प्लीज OTC से कुछ लेके मत खाइए अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से फर्स्ट 3 मंथ में बूस्ट और बॉर्नवीटा भी मत पीजिए। और आयुर्वेदिक मेडिसिन उनके कहने से, अगर मैं कहती हूँ मैं चोर नहीं हूँ, तो आप मुझे स्टार कैसे समझ लेंगे? हमारी मजबूरी ये हुई एलोपैथिक वालों की कि हम कहते रह गए हमारे साइड इफेक्ट है, तो आपने तो हमें चोरी बना दी थी, हमारे सिर्फ साइड इफेक्ट है। उन्होंने कह दिया हमारे साइड इफेक्ट नहीं है, तो उनके कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। किडनी बैठ जाएगी हैवी मेटल्स खा के। तब जब क्रॉनिक रीनल फेल्योर से एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में आओगे तो हॉस्पिटल लूट लेगा आपको आईसीयू में रख के। तो कुछ भी मत खाइए, OTC उतनी ही खराब है, और हर चीज को जब एविडेंस बेस नहीं है, रिसर्च नहीं हुई है, हर चीज नुकसान करती है। तो मैं तो जिनके पक्ष में बेइंतियाज जिंक अननेसेसरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं हूँ। I think Dr. Surya Kumari is unmuted. You want to speak? Yes. Okay. Welcome. Madam, what is the proper position to sleep in each trimester for a pregnant woman? With the first trimester till 12 weeks, one can even lie prone also, because we all know that baby is inside the pelvis. Doesn't matter how the woman is sleeping. When the gradually baby is coming up, and specifically after we all know 14 weeks, 16 weeks, it can press the vena cava. So after that, one should not sleep prone, supine. It will press the vena cava, but nothing going to happen if a poor female, she lie for the 5 minutes or 7 minutes supine also. Mostly toward the left side, but sometimes they can't sleep all the time the left side. They can be sleep on the right side, but tell them on the right side, because already the uterus is deviated from the right side. If you sleep on the right side, it will more deviate toward the right side and can press the ureter. So the best thing, have the pregnancy pillows and put a pillow just behind the bump, a little tilt of the 15 degrees enough. You can sleep on the right, left, whatever you want, and the more on the left side, but not much of the supine. And if you want to sleep supine, just put those pillow, and 15 degrees enough, you can lie. In the further series, we'll tell about the sleep hygiene as well. Thank you, Dr. Surya Kumari. Can I know from where you are, please? Thank you, madam. From where you are? I'm at Rajamundry, Andhra Pradesh. Pardon? Welcome from Andhra Pradesh, ma'am. Rajamundry. Oh, welcome. Rajamundry. Recently, we have gone to the Rajamundry Society. It's the bank of Godavari River. Oh, okay. Thank you. Welcome, ma'am. Thank you. So anybody else wants to speak up, you can raise your hand. Otherwise, then we will be closing the session. Ma'am, there is a role of iodine and DHA as supplements in the first trimester. Role of iodine in the first trimester, eat your Tata Namak. Don't go for the Himalayan and pink salt and yellow salt and white salt and black salt. Kabhi it is okay with the recipes.
You make with the Himalayan salt and the red salt, but please eat your ionized salt. As such, you don't require any extra addition of the and DHA. And DHA. DHA, I'm not a fan for the first trimester at all. No, there is no evidence actually. My urination is start after 16 weeks. Why you want to spend so much of the money for the DHA? Yeah. Just because the pharma company wants it. No, so because there is no. Want to give the DHA, if you really want to give a DHA, give after 16 weeks, not before that. There is no evidence in the first trimester. But otherwise, there's not mother. No evidence. Dufestron safe in second trimester. Yes, some publications are there to give the Dufestron for the 20 weeks, but I can't say because still progesterones are challenged for the first trimester also, but all of us give and get a good result also. This I don't understand. It has been 3-4 years till then pain is continuously there. Which pain? That I think we are talking about the post-cesarean. That means she needs a physiotherapy and the ortho consultation. No pain of the cesarean can be there because of the cesarean as such in the back. I will tell you about somebody is asking how should you sit on the computer. I'll tell you that there you have to have a 45-degree angle with the computer. Keep a backrest at the back of your chair, and then you can sit on the computer for about 2 hours. After 2 hours, you have to get up for about 10 minutes. And these are the proper ergonomics of using a screen. And your screen time should not be more than 2 hours at a stretch. Sometimes your meetings are there. That is okay. But after the meeting is finished, you please get up from the chair and then go for a stroll for about 10-15 minutes and come back to sit on the chair. Your sitting posture should be like a straight back with the backrest and a 45-degree angle of your computer in front of you. Burning sensation or feet sole. If it is burning sensation on the feet sole, we have to see. One is thyroid, one is B12 and other B complex also, and your footwear also. There are 3 things which have to be seen. And somebody is asking that in her 8th month of pregnancy, she's not increasing her weight since last 4 days. So 4 days. Many days? 4 days. 4 days. 4 days. There must be some problem. She must be serially doing her weight. I don't know. 4 days. How come she knows that 4 days in weight? Ma'am, शायद कुछ होगा जिसकी वजह से इसको बोला होगा. Can you please elaborate, whoever Dr. Namrata Patti? 4 days का weight किसी को Can you give us some more details about yourself? Many times, if you have gained enough weight, you won't even have a full month any weight gain. If you have already gained, say 20 kg weight, what's the fun to gain more weight? Yes, if you're not gaining weight at all, then only one has to see. But directly the mother's weight, if you're not increasing, where more important is the fetal weight. If your fetus is going well, your weight gain doesn't matter at all. Doesn't matter. So I've unmuted her if she wants to speak up. Yes, Dr. Namrata. Yes, you have listened very correctly, Sanjam. That Bournvita Horlicks in the first 3 months is not allowed. After first 3 months, we don't know anything about how anything is going to affect the baby. So first 3 months is not for anything except a folic acid or some medication which is required for your baby. Bournvita Horlicks have synthetic vitamin A also. So it is better to start these things after the baby is fully formed. That is, we call about 16 to 18 weeks. We don't start. Bournvita is not made for even for the pregnant woman. Can ondansetron given in the second trimester? It can be given for the vomiting. Yeah, it can be given. Yeah. I think we have finished all the questions. And Dr. Deepika, I think we are on time. Time also. Yes, ma'am. Yeah. So thank you so much to everyone. And it is going to be all the time. This is the third Thursday, na? Deepika, today is the third or second? Third. So this series is going to be the third Thursday of every month, and we'll come again. Thank you so much for joining and being with us, your precious time. Thank you so much. Thanks a lot. So Jacksonpal presents to you cramp off tablets of magnesium bisglycinate 360 mg
for relief from nocturnal and pregnancy-induced leg cramps. Also, we have sugar-free Lycorate sachet, which is in orange flavor, has L-arginine, lycopene, and DHA for second trimester onwards to prevent pregnancy complications. And then we have NariCal tablets, tablets of calcium citrate malate, vitamin D3, and folic acid. My teammate, Mr. Amit Saxena, joins me to thank all the respected, of course, both the respected faculty and all the attendees with us today. Thank you so much for joining. And this is the next webinar, which will be on 19th of June, 5 p.m. So please do join us. If you want to note down the Zoom ID, it's already there. Thank you so much and see you. Bye. Thank you. Bye-bye.